Hi, welcome to the new video. Welcome to the channel. Welcome to new video of 78 BPSC Pre-YQ where we will practice the previous year questions of the past year paper, that is 78 BPSC, which happened in 2024. So this is set G, booklet G है. First question is Dalton's atomic theory successfully explained. So this is option wise, जिसमें से हमें choose करना है कि कौन सा option इसमें सही होगा. So the answer would be Dalton atomic theory has been explained the law of conservation of mass, law of constant composition, and law of multiple proportion. These three things have been explained by Dalton. And law of radioactive has not been explained by Dalton. Rather, it has been explained by Henry Becquerel. I don't know the exact pronunciation, but it is Henry Becquerel. Becquerel in 1896. And according to this law, which says that the higher the number of radioactive atom, higher the number of radioactive atom in a substance will be directly proportional to the rate of radioactive decay. Why I'm explaining this because कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे ऑप्शंस जो होते हैं वो नेक्स्ट ईयर के पेपर में रिपीट हो जाते हैं. So this we should know that this law of radioactivity is related to Henry Becquerel. And when it comes to Dalton, he has explained the law of conservation of mass, law of constant composition, and he basically gave the atomic theory. He gave the atomic theory. और एटॉमिक थ्योरी के अंदर ही ये तीनों चीज़ें आते हैं. लाइक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास states that mass is neither created nor destroyed in the reaction. So basically it is conserved, right? Similarly, law of constant composition says that all atoms of same elements are identical in mass and properties, right? So we'll move to the next question. Similarly, all three are the part of atomic theory. ओके. सो इस ये जो पेपर मुझे ऑनलाइन मिला है इसमें जो टिक लगे हैं डोंट गो फॉर इट. जो मैं बता रही हूँ वो अभी मैंने रिसर्च करके प्रॉपर कीवर्ड एनालिसिस करके आपको एग्जैक्ट आंसर बताती हूँ और इस वाले टिक पे आप मत चाहिए. सो द आंसर विल बी 1, 2 and 4. 1, 2 and 4. दिस इज द आंसर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. और अगर आप इसको ऐसे भी देखो ना तो ये तीनों कहीं ना कहीं सिमिलर लग रहे हैं. रादर लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज डिफरेंट. तो अगर आपको ये भी पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सही टिक करके आओगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेक्नोपोलिस. ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है. सो सिलिकॉन वैली इज टेक्नोपोलिस. विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज सिक्रेटेड बाय द स्टमक. ओके. सो इसमें 4 एसिड दिए गए हैं जो स्टमक में सिक्रेट होता है एसिड, उसको पूछा गया है. Alright. So the acid which is secreted by stomach is hydrochloric acid. HCl is an acid which is secreted by stomach. And the source of hydrochloric acid is parietal cell. इनका शायद यही pronunciation होता है. Pronunciation एक बार देख लेना. Parietal cell which led to the activation of pepsin. Pepsin is what? Enzyme which is needed in digestion. Okay, so this is what हाइड्रोक्लोरिक एसिड डस. ये पीरियाटल सेल को एक्टिवेट करता है. पीरियाटल सेल इसका सोर्स है HCl का स्टमक में, जो हेल्प करते हैं एक्टिवेट करने में पेप्सिन. पेप्सिन इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस एसिड का जो भी मेन है उसको पेप्सिन को एक्टिवेट करना जो फर्दर हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है. सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वुड बी द आंसर. बट हम इनको भी देख लेते हैं. सो व्हेन इट कम टू सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड ऑयल ऑफ विट्रोल, which also referred to as king of chemicals. What? King of chemicals, sulfuric acid. So अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि which acid is called king of chemical, then it is sulfuric acid. When it comes to nitric acid is mainly used in production of fertilizers and explosive. Similarly, phosphoric acid is also used in fertilizers, livestock feeds, and phosphate salts. So this question, the answer would be HCl. All right. So we'll move to question number 4. Which of the following ruler ruled Assam in the time of Harsa? Okay, so the option is Aswad Jahan, Bhaskar Varma, King Zahir, and more than one of the above. The answer here is
Bhaskar Varman, who is from Varman dynasty. Varman dynasty, who ruled in Assam. Okay, he was contemporary of Harsha. ऑल राइट, जिन्होंने कन्नौज असेंबली को भी अटेंड किया था, कन्नौज असेंबली। सो इवन अब कभी क्वेश्चन बीपीएससी वैसे रिपीट करते रहते हैं अपने क्वेश्चंस को। सो अगर कभी उसने पूछ लिया कि कन्नौज असेंबली किस रूलर ने, किस असम के रूलर ने अटेंड किया था, तो इट वाज भास्कर वर्मा। सिमिलरली हम दूसरे ऑप्शंस पे देख लेते हैं कि उनका थोड़ा सा हम ऑप्शंस एनालिसिस करते हैं। अश्वथ जहाँ के बारे में तो मुझे ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन मिली नहीं, बट किंग दाहिर इज एन इम्पॉर्टेंट किंग। ही बिलोंग्स टू सिंध, सिंध रीजन, सिंध रीजन से हैं जो दाहिर। और इस इनके दाहिर के किंगडम को इन्वेट किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। ओके, हम यहाँ पे लिखते हैं जो दाहिर हैं, दाहिर दाहिर के किंगडम को इन्वेट किया था कासिम ने, मोहम्मद बिन कासिम। व्हाई ही इन्वेटेड? बिकॉज ऑफ pirates creating problem in trade near this region, near Sindh coast. Okay, और इस पूरी स्टोरी को लिखा गया है चाचनामा में। दिस इज अ फेमस बुक, और बीपीएससी ने सेम चाचनामा पे क्वेश्चन इसी 78th बीपीएससी पे पूछा है, जो हम अभी देखेंगे। तो चाचनामा डिस्क्राइब्स द होल सिनेरियो ऑफ दिस बुक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और जो ताहिर के फादर थे, हिज नेम वाज चाच, उन्हीं पे बेसिकली दिस बुक्स रिवोल्व्स। और दूसरी चीज जो हमें इम्पोर्टेंट जाननी जरूरी है कि बैटल ऑफ अरोर विच इज नियर इंडस रिवर, वहां पे दाहिर वाज डिफीटेड, दाहिर वाज डिफीटेड। ओके, व्हाई? बिकॉज ऑफ बुद्धिस्ट बिट्रेल। तो हमें ये पेरिफेरल नॉलेज अबाउट दाहिर पता होना चाहिए, क्योंकि सेम क्वेश्चंस जो दाहिर के किंगडम से रिलेटेड है, किंग दाहिर के किंगडम से रिलेटेड है, चाचनामा जो उसके फादर का नेम है, वो हमारा सेम क्वेश्चन पूछा गया। और पर्टिकुलरली वैसे भी ये इंपॉर्टेंट है जब अरब का इन्वेजन इंडिया में हुआ था। ओके, सो द आंसर विल बी भास्कर वर्मन। नाउ वी विल मूव टू सेकंड क्वेश्चन। दिस इज करंट अफेयर, सो वी आर नॉट सॉल्विंग द करंट अफेयर एंड मैथ्स क्वेश्चन हियर। करंट अफेयर तो ऑलरेडी वो आउटडेटेड हो चुका है, तो उसका करने का कोई फायदा नहीं है। हम जो रिसेंट के करंट अफेयर है वही प्रिपेयर करके जाएंगे। व्हेन इट कम्स टू मैथ्स, वो हमने दूसरी सीरीज स्टार्ट की, आप उसमें देख लीजिए। सो दिस इज द करंट अफेयर। दिस द मीटर दैट इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस मूव्ड बाय व्हीकल इज नोन एज। ओके, पहले हम इसमें देखते हैं। एमीटर इट यूज्ड टू मेजर द करंट, speedometer meter it used to measure speed, chronometer it is basically used in navigation. Okay, and odometer is definitely used to measure distance, so the answer would be odometer. आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, ओडो का डी एंड डी से डिस्टेंस। ओके, नाउ द seventh question, which amendment to the constitution abolished the 2 seats that were reserved for Anglo-Indian community? Okay, नाउ देयर इज वन ट्रिक कि कभी कभी जब आप किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो, तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज दैट इफ यू आर लकी इनफ, तो वो कब एक क्वेश्चन सिमिलर आगे हमारे क्वेश्चंस में रिपीट हो सकता है। इसका जो आंसर था वो एक इसी पेपर में 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, वो आंसर ही दे रखा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छे से पेपर को पढ़ो, अच्छे से एनालाइज करो, क्या पता कभी कभी उसी के आंसर्स हमें उसी पेपर में मिल जाए। ठीक है, तो हम इसका आंसर देखते हैं। विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश द 2 seats दैट वर रिजर्व फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, दैट इज 104th अमेंडमेंट एक्ट। नाउ इसका हमें आर्टिकल भी पता होना चाहिए कि एंग्लो इंडियन के आर्टिकल रिलेटेड, एक तो आर्टिकल 331 है और एक आर्टिकल 333 है। आर्टिकल 331 इज रिलेटेड टू पार्लियामेंट में जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स को। दिस इज रिलेटेड टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो गवर्नर अपॉइंट करता है 1 मेंबर फ्रॉम एंग्लो इंडियन कमेटी। और इसको एबॉलिश करने के लिए जो रीजन दिया गया है, विच सेज दैट दे हैव इनफ रिप्रेजेंटेशन या इनफ इंटीग्रेशन इन द सोसाइटी, कि उनको अब रिजर्वेशन की नीड नहीं है, दे आर सफिशिएंटली इंटीग्रेटेड इन इंडियन कम्युनिटी। एंड दिस 104th अमेंडमेंट, यू मस्ट नो दैट इसने SC ST रिजर्वेशन को अनदर
10 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया है, 10 ईयर एक्सटेंड कर दिया है। ओके, नाउ 8th क्वेश्चन, दिस इज मैथ्स क्वेश्चन, वी आर लीविंग है दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इन आर्टिफिशियल पोर्ट। पोर्ट्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए, पोर्ट्स बहुत बार क्वेश्चन पूछता है पोर्ट्स के बारे में। सो आर्टिफिशियल पोर्ट हेयर इज चेन्नई, चेन्नई इज द आर्टिफिशियल पोर्ट जो लोकेटेड है तमिलनाडु में। ओके, और हम बाकी पोर्ट्स के बारे में भी देखते हैं, लाइक this port, this is basically one of the oldest port, which is one of the oldest port which is situated in गोवा। कहाँ पे? जुआरी रिवर के आसपास है, प्लीज सी द प्रोनाउंसिएशन। और इसमें मेनली आयरन एक्सपोर्ट के लिए ये यूज होता है। जो यहाँ पे आयरन का हमें प्रोडक्शन जो रिजर्व्स मिलते हैं उसका जो भी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और बाहर कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसका जो आयरन एक्सपोर्ट होता है वो इसी पोर्ट से होता है, विच इज सिचुएटेड इन गोवा। नाउ मुंबई पोर्ट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट। कोची इट इज इन केरला, कोची पोर्ट इज इन केरला। कोची की पोर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कोची के पोर्ट में क्या होता है, दिस इज लार्जेस्ट शिपयार्ड इन इंडिया, दिस इज लार्जेस्ट शिपयार्ड इन इंडिया। Now, what does it mean that Cochin is the largest shipyard in India? It means ships are broken here, and also built here. So basically, you must know that largest shipyard जो इंडिया में है वो कोची पोर्ट है. Okay, so we are moving to question number 10th. This is again the current affair questions. We will not discuss is ये भी current affair question है. This is also current affair. बट ये करंट अफेयर्स हम ये सीख सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चन जो अपॉइंटमेंट होते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जो भी कंट्रीज़ के होते हैं, मिडिल ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन यूरोप, इवन नॉर्थ अमेरिका, तो वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, कौन सा प्रेसिडेंट कहाँ पे अपॉइंट हो रहा है, कौन सा प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो रहा है। ओके, सो 13th क्वेश्चन हेयर अष्ट प्रधान सिस्टम ऑफ मराठा रूलर्स हैव बीन आस्क्ड। तो अष्ट प्रधान यहाँ पे पूछा है, बट यू शुड ऑल्सो प्रैक्टिस द आप अष्ट दिग्गज भी एक बार एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेना, विच इज रिलेटेड टू विजयनगर, बहुत पूछते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। नो पेशवाइज प्राइम मिनिस्टर, पेशवाइज प्राइम मिनिस्टर, तो अगर बी का 1 से ही जाएंगे ना तभी हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। पेशवाइज प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, पेशवाइज प्राइम मिनिस्टर एंड सचिव इज द चार्ज ऑफ करेस्पॉन्डेंस। नाउ सामंत इज रिलेटेड टू फॉरेन मिनिस्टर एंड डी अमात्य इज रिलेटेड टू फाइनेंस मिनिस्टर। सो दिस इज द आंसर। ये हमारे बाकी जो भी ऑफिशियल्स, जो रिमेनिंग ऑफिशियल्स हैं, उनको भी आप एक बार देख के चले जाना। नाउ दिस इज करंट अफेयर क्वेश्चन, बट यू शुड ऑल्सो नो अबाउट द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में आपको ये 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो इसको कौन रिलीज करता है, दैट इज एनएसओ, एनएसओ रिलीज करती है, विच इज अंडर मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसका the base year of IIP is 2011 and 12. Now, it consists of 8 core sectors. How many? 8 core sectors, जो 40% of weight हमारा इस पे रहता है। It includes the 40% weight of all the items. जिसमें से हमें पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट वेट किसका और स्मॉलेस्ट वेट किसका है। लार्जेस्ट वेट है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का, और स्मॉलेस्ट वेट है फर्टिलाइजर्स का। वैसे तो सब पता होना चाहिए सीक्वेंस में, बट ये दोनों तो पता ही होना चाहिए कि रिफाइनरी का हमारा लार्जेस्ट है और स्मॉलेस्ट हमारा फर्टिलाइजर्स का है। ओके, 15th क्वेश्चन, हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेटिवली पूछा जाता है, इजी क्वेश्चन भी है। जिसमें से होगा रेडिएशन। रेडिएशन को कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, because it travels in electromagnetic waves, it travels in electromagnetic waves, और इसी वेव के थ्रू जो सन रेज हमारे अर्थ पे आती हैं, दैट इज फ्रॉम दिस वेव। वन शुड यू ऑल्सो नो दैट जो रेडिएशन में जो स्पीड होती है दैट इज फास्टेस्ट। रेडिएशन इसमें स्पीड सबसे फास्टेस्ट होती है, फिर कन्वेंशन में होती है, कन्वेक्शन सॉरी, एंड देन कंडक्शन में होती है। कंडक्शन इसमें मीडियम सिर्फ सॉलिड होता है, इसमें लिक्विड एंड गैसेस भी होते हैं। ओके, सो द आंसर इज रेडिएशन। 16th question, which type of rock is formed from cooling and solidification of lava? This is an easy question, igneous rock.
एंड यू ऑल्सो नो दैट सेडिमेंट्री रॉक इज, ये लेयर्स में अकर होते हैं, इसमें हमें फॉसिल्स मिलते हैं। दीज टू थिंग यू मस्ट नो, क्योंकि दो बेसिक चीज़ें हैं सेडिमेंट्री रॉक की। क्रिस्टल इज अ फॉर्म ऑफ रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक जो टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से जो सेडिमेंट्री रॉक दूसरे रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक, मेनली रिलेटेड टू मार्बल्स एटसेट्रा। सो हियर द आंसर इज इग्नियस रॉक. This is current affair question. We are skipping this. Now 18th question. Which of the following human races inhabits in China, Mongolia and Japan? The answer is very easy. That is Mongolite. Nordic basically inhabit this Nordic area जो आर्टिक सी के आसपास है, उस एरिया पे ये सारे रेसेस रहते हैं. नेग्रो इज बेसिकली वेयर अफ्रीकन्स लिव. अफ्रीकन्स का जो रेस है उसको नेग्रो बोलते हैं. ऑस्ट्रेलाइड मेनली द ट्राइबल्स जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास हैं या कुछ साउथ ईस्ट एशिया में भी इस रेस को पाया जाता है. बट चाइना, मंगोलिया एंड जापान, दैट इज रिलेटेड टू मंगोलाइट. ओके, सी दिस क्वेश्चन आई वाज टॉकिंग अबाउट चाचनामा, जो हमने ऊपर दाहिर के बारे में देखा था, किंग दाहिर हु रूल्ड नियर सिंध एरिया. सेम क्वेश्चन इज हियर, जो बुक के बारे में है, दैट इज बीन आस्क्ड. So चाचनामा was translated to Persian by, ओरिजिनली जो चाचनामा है वो अरेबिक में थी, उसको फिर पर्शियन में ट्रांसलेट किया है, एंड इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड बाय मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नसरुद्दीन Qabacha. I don't know how to pronounce it, so just forgive me. Nasruddin के टाइम पे was related to 13th century के टाइम पे ये चाचनामा विच वॉज ओरिजिनली इन अरेबिक को हमने ट्रांसलेट किया इनटू पर्शियन. ओके, बाकी बाकी ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं. जो नुरुद्दीन मोहम्मद उफ़ी हैं, इनकी बुक है जवामी हिकायत. दिस बुक इज रिलेटेड टू this is this is this is related to a military conduct which has been during इलतमस. उसी के बारे में ये बुक है, जवामीन उल हियाफत, which has been written by नुरुद्दीन मोहम्मद अफी. इसके बारे में हम देख लेते हैं. शम्स ए सिराज, एक्चुअली दिस इज इम्पोर्टेंट. शम्स ए सिराज, इन्होंने ये बुक लिखी है तारीख ए फिरोज शाही, जो फिरोज शाह तुगलक के बारे में बुक है. ओके, सो चाचनामा हमने देख लिया, उसके बाकी ऑप्शंस भी हमने देख लिए. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सुटेबल कंडीशन फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस. दो मेन कंडीशन होते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस. दिस इज इन इजी क्वेश्चन. हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर. हाई प्रेशर एंड सॉरी this is the answer. And this is purely current affair. Okay, now this is important. Basically हमें न्यूज़पेपर्स तो पता ही होना चाहिए. To highlight the hardship faced by the peasants, Sahajanand Saraswati published which newspaper? शाहजानंद सरस्वती, पहले तो उन्होंने फार्मर्स के लिए एक होंकार which was a journal. He brought this first. Again the answer is obviously the लोक संग्रह. उसके और एक उनका होंकार बहुत फेमस था. देन लोक संग्रह. बाकी हम ऑप्शंस को भी देख लेते हैं. ब्रोकन विल, दिस इज नॉट अ न्यूज़पेपर, दिस इज बेसिकली अ बुक बाय सरोजनी नायडू. सरोजनी नायडू के ये बुक थी. और सरोजनी नायडू के बारे में आपको पता होना चाहिए. शी इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन हु हैव प्रिसाइडेड द INC. अगर वुमेन की बात करें, सिर्फ वुमेन की, तो इट वाज एनी बेसेंट, बट इंडियन वुमेन इट इज सरोजनी नायडू. इंडियन नेशन इज न्यूज़पेपर विच इज फ्रॉम पटना, और इट इज इन इंग्लिश, which has been initiated by महाराजा of दरभंगा, जिनको हम कामेश्वर सिंह भी बोलते हैं. सो दिस इज अबाउट इंडियन नेशन. निर्बल सेवक के बारे में हम देखते हैं. निर्बल सेवक इज बाय राजा महेंद्र प्रताप. राजा महेंद्र प्रताप. इसका हिंदी और हिंदी में इसको निर्बल सेवक के नाम से इन्होंने इस
न्यूज़पेपर को पब्लिश किया था। हाउ मेनी टाइम्स डू द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड इन अ डे? इसका आंसर 22। मैथ्स का क्वेश्चन है बट आंसर आपको पता होना चाहिए कि 20 नॉट 24, 22 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयरन ओर? द आंसर इज लिमोनाइट। बट ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। चीनाबार इज एन ओर ऑफ मर्करी। Similarly, bauxite is an ore of aluminium. Limonite is an ore of iron. Pyrite, it is also known as fool's gold. Pyrite is known as fool's gold, which is made up of iron and sulfur. So the answer about this question is limonite. Sorry. Who was the founder of